हेलो गाइस। सो हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है क्रिएट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड व्हाट हम लोग जो अभी तक यहाँ पे आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्रैश कोर्स फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, फॉर एनएलसी एग्जामिनेशन, फॉर द एसएससीजे एग्जामिनेशन। तो वो बहुत ही अच्छी गति से, बहुत ही अच्छी स्पीड से आपके लिए यहाँ पे चल रही है। ठीक है, so I really hope you all are enjoying at your homes, because in these days you are bounded to be at your home, so you are not allowed to go out. so ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अब डिस्कशन करना चाहिए हमको अपनी पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है इन दिनों में, क्योंकि अभी अब कुछ कुछ अभी अभी खैर हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं, पर कुछ समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे और आपके लिए वही पूरा दौर जो वापस से पढ़ाई का दौर है वापस से शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना इस जो टाइम मिला है आपको, इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज किया जाए और बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करके इसका यूज़ किया जाए। This should be your first approach in these kind of days. Okay, so all of you, I will firstly like to tell you that please share this video as much as possible with your friends, so that the other student जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, जो आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, the topic of discussion today is the bipolar junction transistor. Okay, so be happy because this topic is being asked in multiple examination from कोर से कोर एग्जामिनेशन का की बात कर ले, चाहे गेट एग्जामिनेशन, ईएससी एग्जामिनेशन, या फिर आप छोटे से छोटे एग्जामिनेशन की बात कर ले, बीजेटी से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो सारे छोटे बड़े क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, सो आई होप यू आर गुड एंड आई एम मूविंग अहेड। एंड जब तक मैं थोड़ी बातें करता हूँ, आप जल्दी जल्दी सी इसको आप शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सी आप हमारे जो ये चैनल है इसको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, okay guys, so this is our team. First of all, this is probably the best team in electrical engineering you can find. Ankit sir is the head of our team. Ankit sir, Vishal sir is the expert in the communication. Kamesh sir is our expert in the analog and EDC portion. Ajay sir hai, he is the expert in the core subjects. Shankar sir and Pramit sir will also be teaching you definitely. Shankar sir will take the circuit part and Prabit sir will take the instrumentation. He is the expert in the instrumentation. Okay, me and Rahul sir will be taking you the different kind of courses like UPPSC, SSC, JEE. In these kind of courses, we will be teaching you. We will be providing you other different kind of guidance, because अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वी बिलीव कि आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन इसी चैनल पे हम करा देंगे। ठीक है गाइज, सो इस नोट के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। So this is me. My name is Khemendra. जैसा कि आप जानते हैं, my name is Khemendra and I am MTech in Power Electronics and Drive. I am MTech in Power Electronics and Drive. I have around 2 years of teaching experience in GATE and ESC domain and 1 year of experience in central government as a central government employee. So I teach number of subjects. These are my number of subjects, and here I am teaching you the basic analog electronics for those examination. For those examination, apart from the GATE examination, I am taking you the basic analog electronics apart from the GATE examination. Okay, because in GATE examination it require so much of depth, and the so much of depth subject जो लेंगे वो आपके शायद कामेश sir will be taking those subjects for you. Okay guys, so I'm going ahead, and this is, you know, very well know that this is my code. My code is, if you want to take subscription of Unacademy Plus, Unacademy Plus पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, that is what Khame Live. Khame Live is my code. If you want to take subscription in Unacademy Plus to take a number of things, to learn number of things, and right now in Unacademy Plus, I am teaching a course that is the control systems. And there are other teachers also which are teaching you in Unacademy. Even Vishal sir and Ankit sir is also teaching you in Unacademy from 7 p.m. in the morning. They have started their classes. Electrical machines is going on there by Ankit sir. You can definitely go there and watch those classes with the Unacademy Plus subscription. Okay, if you wanted to take the subscription, you can use my code. My code is Khame Live. Okay,
सो थोड़ी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में. आफ्टर दिस वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टीचिंग पार्ट. ओके, थोड़ी सी और बातें कर ले. जब तक आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद टू योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, मोर एंड मोर शेयर कीजिए इसको, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड. ओके, so what you get in the Unacademy Plus thing, what you get in the Unacademy Plus thing, you will get the daily live session will be provided. Daily live session will be provided. Okay, content will be strictly based on GATE and EAC domain. And if you very well know कि मैं अलग अलग एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज वहां पर भी लाता रहूंगा. ओके, राइट नाउ आई एम रनिंग कंट्रोल सिस्टम देयर. ओके, सो आफ्टर द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यू आर, मतलब आप उसको वीडियो को बाद में देख सकते हैं. ठीक है, get guidance under the best teachers. So we have the best team, and apart from our team also, if you take subscription, apart from our team also, if you take subscription, you will get the access of all the educators available in the Unacademy Plus domain. ठीक है, जितने भी आपके गेट एंड ईएससी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो गेट एंड ईएससी में जितने भी एजुकेटर्स आपके पास है, जितने भी एजुकेटर टीच कर रहे हैं, not necessary from only electrical or electronics faculty, any faculty, civil, mechanical, you will get access to all those. Okay, so this is also part and parcel. Okay, crash course will be provided, definitely crash course will be provided. Right now I am running a crash course on control systems. Okay, all the English and Hindi both language, your matter will be provided. Okay, in both language your matter will be provided. And if you these all are things which are provided. Once more I am telling you, if you want to take subscription, you can use my code Khame Live is my code. ठीक है guys, so I hope we have spent some time here, and now I am moving forward for the teaching part. Okay, so in this video I will try to wind up all the things quite early. ठीक है, so the topic of discussion for me today is the bipolar junction transistor. Junction अच्छा, तो what is this bipolar junction transistor then? It is a BJT. It is what? A BJT. BJT बोला जाता है इसको. क्या है भाई ये BJT? अब क्यों है, क्या है, कहाँ से आया है, अभी सब बताएंगे आपको. देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, इन द ओल्ड टाइम्स, इट वाज इन्वेंटेड इन 1947. ठीक है, बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 1947 दिसंबर में इसको इन्वेंट किया गया था. अच्छा अच्छा, इसको क्यों इन्वेंट किया गया? व्हाई दे हैव इन्वेंटेड, एंड दोज scientists who have invented BJT has got Nobel Prize in physics. Okay, first of all, let me understand this. What happens before 1947 is, that was the 1947 से पहले भी कंप्यूटर हुआ करते थे. 1947 से पहले भी कंप्यूटर हुआ करते थे. कंप्यूटर तो पहले से थे ना. तो पहले के टाइम पे कंप्यूटर किस तरीके से होते थे, जरा याद करके देखो. एंड बीजेटी ने कितना रिवॉल्यूशन ले आया उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कि आपके हाथ में अब एक कंप्यूटर है एक तरीके से. ठीक है, योर फोन इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर. नो, इट इज अ प्रोसेसर. नाउ इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन ले आए 1947 दिसंबर के बाद से, कि आपका जो फोन, आपका एक कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया. पहले एक कंप्यूटर होता था, वो एक पूरे कमरे के बराबर होता था. क्यों इतना बड़ा क्यों होता था? ऐसी क्या चीज थी उसमें? उसमें थी वैक्यूम ट्यूब्स. उसमें क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी उसमें. उसमें क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी. तो प्रीवियसली दे हैव यूज्ड द वैक्यूम ट्यूब्स in and the vacuum tubes is replaced by the transistor. Vacuum tubes is replaced by a transistor. तो मैं एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ठीक है ना. previously
vacuum tubes are used in computers and those were replaced by transistor. ठीक है, इतना पहला पॉइंट समझ गए, एक एक पॉइंट पॉइंट करके समझेंगे बिल्कुल आसानी से। यू विल नॉट गेट एनी डाउट अबाउट इट इन द एंड ऑफ द सेक्शन, एंड ऑफ द वीडियो में आप बहुत सारी अच्छी नॉलेज को गेन कर चुके होंगे। प्लीज बी मतलब शांति से बैठिए, और बिल्कुल कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ऑल्दो दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड बट यू विल गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, ओके। अब एक एक करके इसके वर्ड्स को खोलते हैं, एक एक करके इसके वर्ड्स को खोलते हैं। वाई इट इज यूज्ड a word called bipolar. What is the meaning of this bipolar? What is the meaning of this bipolar? बाइपोलर का मतलब क्या हो जाता है? बाइपोलर का मतलब ये होता है कि in this transistor it has electron and hole and both contribute in the current flow. It has electron and hole and both contribute in the current flow. That is why it is a bipolar. That is the meaning of a bipolar. I am writing it out and I will share this video, this PDF with you, and this will be your notes, okay? So do not worry about writing anything, just listen to me and I will share this thing also, okay? Do not worry. It is a electron and hole both contribute in the current flow. In the transistor, what will happen? Electron and hole both contribute in the current movement. Hole both contribute in the current movement. अब देखो, so this is the reason why it is called this bipolar, ठीक है? Now what is a junction? जंक्शन बीच में वर्ड कहां से आया? इट हैज टू जंक्शंस, इट हैज टू जंक्शन, junction, it has a transistor, a BJT has two junction, a BJT has two junction, clear? So these are the 2 points I have discussed very clearly, okay? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ट्रांजिस्टर वर्ड कहां से आया? ठीक है, अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिस्टर आई विल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें होता क्या क्या है, एक मेरे बीजेटी में there are two type of charge carriers, there are two type of semiconductors, there are two type of semiconductor, one is n type semiconductor and p type semiconductor. There are two type of, before coming to the transistor world I am just elaborating a little bit, फिर उसके बाद हम चलेंगे वापस से ट्रांजिस्टर पे। एलेबोरेशन पार्ट हो रहा है शुरू, अभी उसको समझो। BJT is a combination of N and P type of semiconductors. अब वो combination किस किस तरीके से होता है? It is of two types. BJT is combination of N and type of semiconductor.
अब ये तो मैं समझ गया, एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। इफ अ पी टाइप लेयर, अच्छा यू वेरी वेल नो व्हाट इज एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन द पेंटावैलेंट impurity is doped, p type semiconductor when the trivalent impurities are doped. Okay, you very well know the what is n type and p type. If p type element is sandwiched between the two n type elements, if p type semiconductor is sandwiched between the two n type semiconductor, then it will become npn transistor, then it will become npn transistor. And if n type element is sandwiched between the two p type element, then it will become p type pnp type transistor. Okay, so these are the two type of transistor we have, these are the two type of transistor we have. अच्छा अब समझो, इसमें करंट कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, so why it is called a transistor, why it is called a transistor now. Okay, मैं ये बताने वाला हूँ कि इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है, ट्रांजिस्ट करने अगली स्लाइड में बता दो। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है, ट्रांजिस्टर वर्ड बना है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस ट्रांसफर, ये क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या बोल दिया सर आपने, ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ये तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, the basic operation of this, there are npn type of transistor and pnp type of transistor. it means यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके तीन तो टर्मिनल होने वाले हैं एंड टू जंक्शन होने वाले हैं, तीन टर्मिनल होने वाले हैं एंड टू मेरे जंक्शन होने वाले हैं। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पे कि जंक्शन पे होती है बाइसिंग, जंक्शन पे होती है अलग अलग प्रकार की बाइसिंग। अब बाइसिंग किस तरीके से हो सकती है, तो हम इसकी बाइसिंग को ऊपर नीचे करके, हम इसकी बाइसिंग को ऊपर नीचे करके इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हल्का सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको एज अ एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है, एज अ एम्पलीफायर इसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे ये तो बाद में समझेंगे, एक बार बस हल्का सा ये समझ लो कि क्या कहानी हुई है। कहानी यही हुई है कि सपोज करो कि जब एक फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, इसको एक जंक्शन को मैंने नाम दे दिया J1, एक जंक्शन को मैंने नाम दे दिया है J1, दिस इज माय J1 एंड एक जंक्शन को मैंने नाम दे दिया J2। J1 मेरी फॉरवर्ड बायस्ड है, J1 मेरी फॉरवर्ड बायस्ड है और सेम टाइम पे J2 मेरी रिवर्स बायस्ड है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। जब J1 मेरी फॉरवर्ड बायस्ड है तो मेरा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, ये मैंने पढ़ा है, मैंने R विल बी मिनिमम। अप्रोक्सीमेटली मैंने कंसीडर कर लिया कि भैया हो जाएगी जीरो, अप्रोक्सीमेटली मान लिया। फॉर रिवर्स बायस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो मैंने इसको इन्फिनिटी मान लिया, मैक्सिमम है तो मैंने इसको इन्फिनिटी मान लिया। अब व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, द ट्रांसफर और ऑफ करंट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इसमें से करंट तो एक ही जाएगा, इसमें से करंट तो एक ही जाएगा ना दोनों में से। व्हाट इज हैपनिंग हियर, द ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम, द ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, द ट्रांसफर ऑफ करंट, अब इधर देखो, द ट्रांसफर ऑफ करंट, ये ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम
लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर। इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर, बिकॉज इट इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन। इट ऑफर ट्रांसफर ऑफ करंट Don't worry, I will share this PDF and you will get all these notes. Do not worry. Do not worry, I will share this PDF and you will get all these notes. Okay. I hope you have understood these points which I have, मैंने जो यहाँ पे लिखे, एक एक पॉइंट को मैं लिखने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। एक एक पॉइंट को मैं लिखने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके। अच्छा, एक और पॉइंट आ जाता है यहाँ पर अभी, एक और मेरा नोट पॉइंट आ जाता है कि व्हाई वी नीडेड दिस ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर की नीड क्या हुई थी। एक तो चलो ये ठीक हो गया कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज करते, तो साइज मेरा रिड्यूस हो गया। तो एडवांटेज में ये आ गया कि साइज मेरा रिड्यूस हो गया, ये मेरा एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, साइज ऑफ माय कंपोनेंट, साइज ऑफ योर कंप्यूटर, देखो कितना कितना छोटा आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप कितने हल्के हल्के आ गए। दिस इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट इज द ओवरऑल, मेरा जो चीज है उसका मेरा साइज डिक्रीज हो गया, साइज हैज बीन डिक्रीज्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। व्हाट इज द सेकंड थिंग, बिफोर, अगर सपोज करो डायोड की ही बात करें, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट डायोड, व्हाट हैज हैपेंड, what is diode, diode is offering a smooth conduction in the forward biased, and diode is offering no conduction in the reverse bias. This is what diode is doing, but it means that diode operation is not controlled, the diode operation is not controlled. This is the point to remember. Diode operation is not controlled, but BJT operation is कंट्रोल्ड। अब बीजेटी ऑपरेशन क्या है, कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। कंट्रोल्ड ऑपरेशन मतलब जब आप चाहोगे, जब आप चाहोगे, जब ऐसा कर सकते हो कि हाँ यार इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, जब आप चाहोगे। ओके, इट इज अ कंट्रोल्ड डिवाइस, इट इज अ विच कंट्रोल्ड डिवाइस, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। All these points are very important and multiple times they have asked in such kind of small examination or big examination. Okay, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे चल जाते हैं। जो नोट्स लिख पा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, अब एक और सवाल देखो, इंटरव्यू में इस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायोड एंड बीजेटी। फिर इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू शुड बी, अच्छा बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। द करंट कंट्रोल डिवाइस आर दोज डिवाइसेस, करंट कंट्रोल डिवाइस के बारे में लिख रहा हूं, करंट कंट्रोल डिवाइसेस, सीसीडी लिख दिया मैंने, are those devices whose output characteristic output
characteristic dependent on dependent on the input current. ठीक है, this is the definition of what is a current controlled device. This is what a current control device is. Okay, I hope you have understood this concept and you are following me. If you are following me, then please let me know by showing your reaction in the chat box. I am there to answer your queries. Okay, I am there to answer your queries, guys. Do not worry, I am there. Do not worry. ठीक है, so this is what the two pages we have understood, and these are the basic concepts of what a PN junction diode. These are the all are the basic concept of a PN junction diode. ठीक है, इतना तो मैं समझ गया. ठीक है, बेसिक जंक्शन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में. अब मैं आगे चल रहा हूँ. आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग. इफ यू आर फॉलोइंग देन प्लीज लेट मी नो बाय शोइंग योर रिएक्शन. ओके, all these points are very important. Number of times that this question has been asked. Okay, what is bipolar, why it is bipolar. Okay, वैक्यूम ट्यूब पहले चलो ये तो नहीं पूछा गया था. सीसीडी करंट कंट्रोल डिवाइस क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है. ठीक है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया. बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. नेक्स्ट पॉइंट इज योर के इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होंगे. पहले तो ये चीज कौन कौन से टर्मिनल्स होंगे. देयर आर थ्री टर्मिनल्स. ओके, it has three terminals. कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल के नाम बता दे रहा हूं मैं. एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. एमीटर, बेस एंड कलेक्टर इज योर थ्री टर्मिनल डिवाइस. ओके, अब देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. इसको जरा देखना, फिर सोचना समझना किस तरीके से ये होता है. ठीक है, फिर उसके बारे में उसमें दो तीन चीजें लिखेंगे. बिल्कुल कामली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो इस चीज को, बिकॉज ये बहुत ही आसान चीज है. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है. ओके, so this is my diagram. Wait for a while, just a minute. This is my diagram, simple diagram. This is a very simple diagram. अब क्या है इसमें फायदे, क्या क्या हो गए मेरे इसके ट्रांजिस्टर को यूज करने के. दिस इज माय वन ट्रांजिस्टर. ओके, दिस इज माय वन ट्रांजिस्टर. व्हाट इज दिस? दिस इज योर एमीटर. This is your emitter. First of all, this is your emitter. This is your base. This is your collector. Emitter, base and collector. And I am writing it is a NPN transistor. It is a NPN transistor. Emitter is the emitter terminal, and this is emitter अंदर वाला. This is base and this is your collector. It is a NPN transistor. It is a NPN transistor. फिर क्या होगा? अच्छा, अंदर की तरफ लिख देता, रुको. It is a NPN type of transistor. It is a NPN transistor. So what will happen? ये जो emitter है आपका, ये this is your emitter terminal. This is your emitter terminal.
दिस इज योर कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज योर बेस टर्मिनल. सो व्हाट इज हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एमीटर जो आपका है, एमीटर that is the highly doped, जो डोपिंग है वो एमीटर में हाईएस्ट होगी, बेस में is always lightly doped, and your collector is moderately doped. Your collector is moderately doped. This is your collector terminal. इसको अलग कलर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे. This is your emitter, this is your base, and this is your collector. Emitter region, collector region और base region. This is emitter terminal, base terminal and collector terminal. Okay. अब इसी तरीके से आपका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, इसी तरीके से आपका हो सकता है पीएनपी ट्रांजिस्टर. पीएनपी ट्रांजिस्टर भी आपका इसी तरीके से हो सकता है, बस यहाँ पे पीएनपी हो गया बस वो. द ओनली डिफरेंस इज ये पी एन और पी हो जाएगा. एक और डिफरेंस होगा वो अभी बाद में पता चलेगा. एक और डिफरेंस होगा वो आपको अभी बाद में पता चलेगा थोड़ी देर में. ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ की बात करूं तो उसके केस में कलेक्टर हैज द हाईएस्ट विड्थ, एंड सेकंड नंबर पे है आपका एमीटर, एंड थर्ड नंबर पे है आपका बेस. दिस इज द रेंज ऑफ देयर विड्स. ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ देयर विड्स. अच्छा ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज, दिस इज माय वन पॉइंट, एंड द अनदर पॉइंट इज डोपिंग. डोपिंग के लिए सबसे ज्यादा डोपिंग है मेरी एमीटर की, उसके बाद मेरी डोपिंग है कलेक्टर की, उसके बाद मेरी डोपिंग है बेस की. why the width of this collector is high, width of collector is high, क्योंकि जो मेरी पावर डिसिपेशन होती है, जो मेजॉरिटी करंट विल फ्लो फ्रॉम द collector and my power dissipation will happens in this collector region. The power dissipation will happens in this collector region, so the heat in the collector region will be higher, so that is why its area should be wider. ठीक है, that is why its area should be wider. Area of collector region should be higher as power dissipation occur in the same region. I hope you are following me. I hope you guys are following me and you are liking the way of my teaching. और जो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको सारी चीजें बताते चले जाएंगे धीरे धीरे करके. ठीक है. So I hope you are following me. So there are two type of transistor. One is the NPN and second one is the PNP. अच्छा अब एक सवाल आता है नेक्स्ट पेज में, वो सवाल का जवाब दूंगा नेक्स्ट पेज में. सवाल का जवाब दूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर, क्वेश्चन नंबर है ये बताओ, which transistor
is used in applications? Which transistor is used in the application? The answer of this question will be NPN transistor. Why? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते, देखो उसमें भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इस तरह के, कौन सा ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन में यूज होता है, क्यों यूज होता है, एनपीएन क्यों होता है, क्यों यूज होता है, बिकॉज एनपीएन हैज हायर मोबिलिटी, बिकॉज एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज हायर मोबिलिटी। एनपीएन की मोबिलिटी हायर कैसे हो गई, एनपीएन की मोबिलिटी हायर कैसे हो गई, याद करने की कोशिश करो, मैंने सारा बताया ये, याद करने की कोशिश करो, मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है जब मैंने मोबिलिटी पढ़ाई थी। एनपीएन की मोबिलिटी हायर इसलिए हो गई क्योंकि दो मेरे एनपीएन रीजन है, देयर आर टू एनपीएन रीजन which carries majority charge carriers which carries majority charge carrier which are electrons, ठीक है, and this is the case of npn, and the case of pnp consist to p region, okay, to n region है ये, ठीक है, it is a 2n region and this is 2p region. I hope you are following me, which has majority charge carrier holes. So we know what we know, that the mobility of electron is greater than mobility of holes. I hope you are understood, because देखो अब देखो समझने वाली बात है, mobility of electron is greater than the mobility of holes. Okay, npn consists 2n region. Okay, तो 2n region में majority charge, what are the majority charge carriers are electrons, majority charge carriers are electron only because it has the 2n region. Okay, understood. pnp में has 2p region, तो majority charge carriers है holes में. Mobility of electron is greater than the mobility of holes. I have already discussed this thing with you in my first or second class. In my first class, in my first lecture, I have discussed this thing, that the mobility of electron is greater than the mobility of holes. अब देखो कितना important था वो first lecture, उसके बिल्कुल तार जुड़ते जुड़ते यहाँ तक आ गए, ठीक है. In my first lecture I have told you that the mobility of electron is greater than the mobility of holes. That is why in the NPN transistor has the higher mobility. It means NPN transistor is faster. NPN transistor is faster. So obviously we will prefer a faster transistor for our application. This is all about this question. I hope you are understanding the concept which I am trying to teach you. You are understanding the concept which I am trying to teach you. ठीक है, अंडरस्टूड. सो ये वाला पॉइंट भी समझ गए थे ना, एरिया ज्यादा होगा पावर डिसिपेशन ज्यादा बेहतर तरीके से होगी, एरिया ज्यादा होगा, तो ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो, के विच ट्रांजिस्टर यूज फॉर एप्लीकेशन. एनपीएन ट्रांजिस्टर इज basically used for this operation.
एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेसिकली यूज फॉर दिस ऑपरेशन। विड्थ समझ गए, डोपिंग समझ गए, ठीक है, विड्थ समझ गए, डोपिंग समझ गए। डोपिंग में अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया याद, ठीक है, एक और देखो। डोपिंग में हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट विल शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इसमें क्या ऑपरेशन होता है, अभी ऑपरेशन जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे उसके बाद ऑपरेशन पे आएंगे। मैक्सिमम करंट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एमिटर रीजन टू कलेक्टर रीजन। एमिटर रीजन से कलेक्टर रीजन पे मैक्सिमम करंट आपका जाना चाहिए। वो किस तरीके से जाएगा, जब मेरी डोपिंग कंसंट्रेशन एमिटर की ज्यादा होगी, ठीक है। इस रीजन की वजह से करते हैं, बाकी अभी मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं कि सपोज करो मुझे इसका ऑपरेशन कराना है, तो कोई ना कोई मेरा जो सिस्टम है, कोई ना कोई मेरा जो सिस्टम है वो रिवर्स बायस में भी होगा। कोई ना कोई मेरा सिस्टम है, वो मेरा जंक्शन है, वो मेरा रिवर्स बायस में भी होगा। जरा जंक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द J1 एंड दिस इज J2, यहाँ पर भी J1 एंड J2, ठीक है। आई होप अब तक जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, बिकॉज ये जो नोट्स बन रहे हैं आपके, ये बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सीखने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम मूविंग अहेड। विद दिस नोट आई एम मूविंग अहेड। अच्छा, ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, ये कभी ये क्वेश्चन इसके नीचे लिख देता हूँ, व्हाई वी यूज ट्रांजिस्टर, ये भी लिख लो। ट्रांजिस्टर इज used as two purposes. One is the amplifier purpose and the second is the switch purpose. Transistor used for purpose. What are the, one is the amplifier, it is amplifier is used to, amplifier किस लिए यूज किया जाता है, the amplification of weak signals for and as a switch also, as a switch also, switching operation के लिए switching operation लिख देता हूँ। स्विचिंग ऑपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। आगे अभी बिल्कुल आज ही समझ लेंगे कि क्या क्या चीजें ऑपरेशन में होती है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, एक डायग्राम और था या पीछे, ये जो डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो बाय डायग्राम, जो मेरा एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर का होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। सो आई एम गोइंग अहेड नाउ, आई एम गोइंग अहेड फॉर द this was my previous one was my cross sectional views, तो मैं इसको डायग्राम को यहाँ ले आऊंगा, डोंट वरी। This is my cross sectional view of my NPN transistor, PNP भी सेम इसी तरीके से है। This is my cross sectional view of NPN transistor. What is this here? What is this small one is the emitter terminal. This is your base terminal. This is your collector terminal. Emitter, base और collector. I hope you are understanding what am I trying to convey. This is the cross sectional view. Clear? I hope it is clear to all of you. This is my cross sectional view. Emitter, base और collector junction इस तरीके से होते हैं मेरे, ठीक है। तो EBC मेरे इस तरीके से होते हैं। अब मैं सिंबल्स बताने वाला हूँ, सिंबल्स, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल?
सिंबल बताने के लिए मुझे क्या जानना जरूरी है? सिंबल बताने के लिए मुझे क्या जानना जरूरी है कि सिंबल कुछ इस तरीके से होंगे। ये गया एक, दिस इज योर एमिटर बेस कलेक्टर। अब ये तो हो गया मेरा एक एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी भी मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ये पीएनपी लग गया मेरा, ठीक है ना। चलो, दिस इज योर सिंबल। सिंबल्स आ गए। दिस इज योर एनपीएन, सपोज करो दिस इज योर and this is your PN and P. This is your NPN and this is your PNP. So what in the NPN transistor, what will be the direction of current? What will be the direction of current? अच्छा देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। आप जब हम इसकी बाइसिंग और पढ़ेंगे अच्छे से, रीजन ऑफ ऑपरेशन और बाइसिंग, तब बिल्कुल अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ये बात समझ लो, अभी ये बात समझ लो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन सी होने वाली है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाली है, देखो इधर देखो, ये ब्लू कलर से जो मेरी डायरेक्शन जा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एमीटर से बेस की तरफ। एमीटर से बेस की तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला है। जब मेरा एमीटर से बेस की तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये ब्लू कलर, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन फ्लो। This is my electron flow will move from emitter to base, ठीक है ना। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो एमिटर टू बेस की तरफ है तो फिर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा? ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और मेरा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये होने वाला है। तो ये जो एरो है मेरा अंदर की तरफ हो जाएगा, तो वो मेरा हो गया एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस एरो बिकम्स एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर मेरा पीएनपी है, पीएनपी में कहां से कहां पे होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होगा? सो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एन साइड से पी साइड की तरफ हमेशा। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो में हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इसका सिंबल हो गया अंदर की तरफ। सो दिस इज योर पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। I hope you are understanding the concept behind it. This is very easy. If you have followed me, please let me know. और फिर मैं इसको आगे की तरफ ले चलता हूँ toward the region of operation. Today we will cover the region of operation. Don't worry. Okay. So this is the views of cross sectional views of this my BJT. Okay. अब आगे मैं चल रहा हूँ region of operation पे। इधर ही लिख देते हैं region of operation भी। रीजन ऑफ ऑपरेशन, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते रहो। मुझे क्या करना है? रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करना है कि अलग अलग रीजन ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से होने वाले हैं इसमें, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना, मैं 3 यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, 3 यहाँ पे लाइंस बनेगी, एक, ये दूसरी,
ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरा मेरा रीजन ऑफ ऑपरेशन के लिए रीजन ऑफ ऑपरेशन। तीसरा मेरा हो गया रीजन ऑफ ऑपरेशन, ये क्लियर। और चौथा मेरा हो गया कहाँ पे उसको यूज किया जाता है, यूज। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। अभी मैं और आगे अच्छे से बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, डू नॉट वरी। So first thing I am writing here, this is my junction J1, this is my junction J2, this is my region of operation, this is my जो वो कहाँ पे वर्क हो रहा है, यूज हो रहा है कहाँ पर, उसका किस चीज में यूज हो रहा है, यूज कहाँ पे होगा। So first and foremost thing, there are my two junction. If my first junction is my forward biased, if first junction is my forward bias, I'll change the color so that you will get a very good notes, don't worry. First junction is my forward biased, and my at the same time my second junction is my reversed bias. अच्छा देखो, फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड, इन द डायोड व्हाट इज हैपनिंग, वी आर हैविंग ओनली वन जंक्शन, तो वन जंक्शन के लिए सिर्फ दो ही केस बनते हैं। हियर वी आर हैविंग टू जंक्शन, फॉर तो टू जंक्शन के लिए मेरे चार केसेस बनते हैं। ठीक है, टू जंक्शन के लिए मेरे चार केसेस बनते हैं, एंड वो चार केसेस मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सो द रीजन ऑफ ऑपरेशन में मेरा फर्स्ट आ गया मेरा फॉरवर्ड बायस्ड, जो J1 है, and J2 is reverse bias. In this particular condition, my region of operation will be active region of operation. The circuit will be in active mode. Where it is used in the active mode, it is used as a amplifier. In the active mode, it is used as a amplifier. So this is number one for me. What is number two then? What is number two then? That my J1 is forward biased and J2 is also forward biased. If my J1, J2 both are forward biased, my region of operation will be the saturation region. My circuit, the transistor will work in the saturation mode. In the saturation mode, it will behave like a closed circuit and it is completely on. इट इज बिहेव्स लाइक द करंट फ्लो होगा मेरा जो कलेक्टर से एमिटर के तौर पे, वो पूरा का पूरा मेरा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑन ऑन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जैसे स्विच की तरह बिहेव करेगा। डायोड जैसे फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टेड होता है उस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, कंप्लीटली ऑन विद सम लॉसेस, जो मेरे ट्रांजिस्टर के लॉसेस होते हैं, जिस तरीके से डायोड में मेरी पोटेंशियल थी, बैरियर पोटेंशियल, उस तरीके से कुछ ना कुछ तो लॉसेस इसमें भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। लेकिन the most important thing is it will behave like a on circuit. Okay, so what is number 3? If my junction is in reverse bias and my junction 2 is also in reverse bias, so the region of operation will be cutoff region. Cutoff region के लिए it will behave like a off circuit, it means a open circuit. It means it will behave like a open circuit. Okay, so this is the basic concept of the, ये question पूछा जा चुका है examination में number of times from here, from this simple block the question has been asked in the examination. Okay, for a directly open circuit. अच्छा, अब ये दोनों को देख लेते हैं, ये जो मेरे दोनों आ गए हैं, these two, the combination of these two circuits will made this transistor to work in a switching operation. स्विचिंग ऑपरेशन के लिए काम इसमें हम करते हैं, स्विचिंग ऑपरेशन के लिए
हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये जो इन दोनों का जो मेरा कॉम्बिनेशन हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही स्विच ऑपरेशन बनता है। देखो स्विच ऑपरेशन होता क्या है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन किसके, सैचुरेशन केस में है, और ऑफ किसी केस में है, आपका ये कट ऑफ रीजन के बेस इस पे है, केस में। आगे चलते हैं। द फोर्थ इज, सपोज करो मेरा जंक्शन 1 रिवर्स बायस्ड हो जाए और मेरा जंक्शन 2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये होगा मेरा इन्वर्टेड रीजन होगा मेरा ये। इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यू सिंबल्स, और मैंने रीजन ऑफ ऑपरेशन डिस्कस किया अभी तक आपके साथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जरा देखते हैं कितना टाइम है। यस वी हैव टाइम, सो वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर माय नेक्स्ट थिंग। बस देखो, अब देखो एक चीज लेके आते हैं आपके लिए, सारा चीज समझ में आ जाएगी। चलो, सो दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें मैं एक चीज करने वाला हूँ, मैं एक्टिव रीजन डिस्कस करने वाला हूँ। एक्टिव रीजन मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, एक्टिव रीजन डिस्कस करेंगे और फिर ये क्लास अपन होल्ड करेंगे। जल्दी जल्दी सी चलते हैं अब थोड़ा। एक्टिव रीजन, in the active region the transistor, the BJT works as a एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है, देखो जरा इसको। एम्पलीफायर किस तरीके से काम कर रहा है, अभी अभी मैंने एक केस जनरेट किया था कि मेरा J1 जो है, J1 जो है ये मेरा फॉरवर्ड बायस में है, और मेरा J2 जो है ये मेरा रिवर्स बायस में है। अगर J1 फॉरवर्ड बायस में है तो R की वैल्यू विल बी 0, J2 रिवर्स बायस में है तो R की वैल्यू नियरली इंफिनिटी, R की वैल्यू नियरली इंफिनिटी। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं एक सर्किट है, अब सपोज कर रहे हैं एक सर्किट है, ठीक है, उसमें से करंट जाने वाला है। ये मेरा फॉरवर्ड बायस में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होगी। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं मैं गेन निकाल रहा हूँ, सपोज देयर इज अ रेजिस्टेंस, मैंने एक बीजेटी लगा दिया और वहां से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ। एक बीजेटी मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, सपोज करो दिस इज माय बीजेटी। देखो बताते हैं। अब सपोज करो आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो मेरा आ रहा है ये तो 0 आ रहा है, इनपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम आ रहा है। इनपुट इम्पीडेंस मेरा 0 आ रहा है, आउटपुट इम्पीडेंस मेरा मैक्सिमम आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है अभी पता चल जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, अगर मैं VI निकालना चाहूँ, VI निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस दैट इज व्हाट R1 बोल देते हैं, मैं इसको मैं R2 बोल देता हूँ। व्हाट इज व्हाट R1 मल्टीप्लाइड बाय करंट, मल्टीप्लाइड बाय करंट सिंपली। सो व्हाट आई नो कि R इज वेरी लो, R इज लो, R1 इज वेरी लो, 0 के बराबर है लेकिन एग्जैक्टली 0 तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही उसका, तो इट इज लो वैल्यू, दिस वैल्यू इज वेरी लो। अब V0 की बात करते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या होगी, R2 आउटपुट इम्पीडेंस माइन इनटू द सेम करंट, सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, तो दिस विल बी हाई। अब गेन क्या होता है, गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट
it means, and this is what high and this is low. It means the gain is increased from low to high. It means it is amplified. It is एम्पलीफाइड. तो एम्पलीफाइड यहां से कर रहा है वो, और फॉर इसीलिए आपको ये आपके जो फॉरवर्ड बायस में इसके इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव रीजन, इसीलिए एक्टिव रीजन में वो एम्पलीफाई कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग कि भैया मेरा जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो उसको वो हाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, मेरे स्मॉल सिग्नल को मेरे लार्ज सिग्नल पे कन्वर्ट कर देगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस वाले पोर्शन में. इट इज एम्पलीफाइड, इट दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ एम्पलीफायर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ एम्पलीफायर. ठीक है. So I hope you are understanding. If you are understanding, please like and share this video as much as possible. ठीक है guys? I hope you are getting a better approach of it. चलो. अब नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस के लिए ये मैंने एक एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ले लिया है. अब मैंने एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ले लिया है तो मेरे को करनी है उसकी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है. जो मेरे ये जो एमीटर है इसको मैं अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ. ये हो गया मेरा बेस कनेक्ट, और मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करना चाहूँ रिवर्स बायस से. अच्छा, फॉरवर्ड बायस में कैसे होगा ये? फॉरवर्ड बायस में कैसे होगा? जब ये मेरा प्लस हो जाएगा, जब एन से नेगेटिव को कनेक्ट करूंगा तभी फॉरवर्ड बायस में होगा, और पी से पॉजिटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा. अब ये जो मेरा दूसरा रीजन है, व्हाट इज दिस रीजन? बेस कलेक्टर रीजन. बेस कलेक्टर रीजन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होगा. रिवर्स बायस कनेक्ट करना होगा तो एन से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो. एन से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो. सो दीज आर योर नोट्स विच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. अच्छा, अब क्या कहानी चल रही है इधर देखो. अब इधर देखो कहानी क्या चल रही है. व्हाट हैपेंस हियर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट चीज. यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास? यहाँ पर है मेरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ मेरी जो डोपिंग ऑफ एमिटर रीजन है इज वेरी हाई. यहाँ पर क्या है मेरे? यहाँ पर है मेरे होल्स थोड़े से है, क्योंकि मेरी इसकी डोपिंग कम है. सबसे कम डोपिंग मेरी इसकी होती है, किसकी? बेस रीजन की. अब क्या हुआ है? व्हेन इट इज जंक्शन 1, व्हेन द जंक्शन 1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, when the junction 1 is forward biased, junction 2 is here, junction 1 is forward biased, the current will flow from this part to this part. The current will flow from आपका करंट फ्लो होगा कहां से कहां तक? जंक्शन 1 को क्रॉस कर लेगा, यहां से यहां तक आपका करंट फ्लो डेफिनेटली हो जाएगा. करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस जंक्शन टू दिस जंक्शन. इसको मैं बता देता हूँ इस कलर से, ब्लैक कलर से आपको बता देता हूँ. ये हो गए आपके सारे करंट जो कि फ्लो हो गए हैं. ये करंट फ्लो होके आ गए क्योंकि ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस था. फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी लेस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी लेस. तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, प्लीज से दिस, क्योंकि इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, एज द एमिटर इज हाईली डोप्ड, the more number of electron will come, the number of electron come will be very very greater than number of holes which are present in the base region. So the recombination between hole and electron will be minimum. The recombination between hole and electron will be minimum, but
But what happened due to this, a large number of electron will come here at the base region and will definitely going to cross this junction also, and at these crosses this particular junction, as the electron number, a higher number of electron, due to the force of this voltage VBE, due to the force of this voltage VBE, it will cross this junction also, as they are highly doped, and then these electrons are attracted by this positive voltage of VCB, and the total current path is covered. Total current path is covered. VCB वोल्टेज उसको ग्रैब कर लेगी सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और मेरा करंट फ्लो हो जाएगा. करंट फ्लो कहां से कहां तक हुआ? यहां से शुरू हुआ था, और ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो मेरा होगा. कहां से कहां तक? बाहर से भी दिखा देते हैं, इधर से इधर तक. अच्छा, अब देखो, अब ये तो मेरा करंट हो गया, लेकिन देयर शुड बी सम रिवर्स सैचुरेशन करंट, बिकॉज दिस वाज दिस J2 is connected in reverse direction. As J2 is connected in reverse direction, connected in reverse biased, there should be a reverse saturation current. And the value of that reverse saturation current is VI naught. VI naught. And similarly, जो मैंने स्टेटमेंट्स पहले बताई थी डायोड के केस में, रिवर्स सैचुरेशन करंट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, सिमिलर वही डिपेंडेंसी यहाँ भी होने वाली है. अब लेकिन एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं. व्हाट इज द सेकंड चीज? रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो गया? I नॉट हो गया. ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज I नॉट. अब ये चीज आप समझ गए कि मेरा करंट कहां से कहां पे फ्लो हुआ है और करंट किस तरीके से मेरा चल रहा है. ठीक है, अब ड्यू टू द मेजर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देयर विल बी अ डेफिनेट करंट. अब देखो देखो, यहाँ पे जितने रिकॉम्बिनेशन हुए बिटवीन दिस एमिटर एंड बेस जंक्शन, यहाँ पे जितना मेरा रिकॉम्बिनेशन हुआ, जितने रिकॉम्बिनेशन हुए उतने मेरे चार्ज कैरियर्स ने करंट यहाँ भी फ्लो करा दिया. जितना मेरा रिकॉम्बिनेशन हुआ उतने ही ने, ज्यादा ने नहीं, जितना रिकॉम्बिनेशन हुआ उतने ही चार्ज कैरियर्स ने मेरा करंट फ्लो यहाँ पे करा दिया, और उन्होंने इस पाथ को कंप्लीट किया है, उन्होंने इस पाथ को भी कंप्लीट किया है डेफिनेटली. तो उसकी वजह से मेरा IB भी एक करंट होने वाला है, और यहाँ पर मेरा IB भी एक करंट होने वाला है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, IB भी एक करंट होने वाला है, और दिस इज बाय डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो आगे बात चल रही है. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ है? ये नेगेटिव डायरेक्शन से गया है और ये P के अंदर चला गया है. नेगेटिव डायरेक्शन से गया है और P के अंदर चला गया है. सो दिस वाज माय डायरेक्शन ऑफ electron. So what should be my direction of current will be? Direction of current will be this, i.e. this is the direction of current, and here the direction of current is IB, and here the direction of current will be IC. अब इसी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो को देख के, इसी वजह से मेरे प्रीवियस सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे NPN डायरेक्शन में बाहर की तरफ थी. NPN की, अब ये देखो करंट कहाँ से है? एमीटर से बाहर निकलते हुए. अब उसी वजह से NPN में करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, और P में अंदर की तरफ होनी चाहिए, और ये जो मेरा कैपेसिटी, ये जो कलेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन ये होनी चाहिए. दिस शुड बी माय direction of current, and opposite in the case of PNP type of semiconductor. Opposite in the case of PNP type of semiconductor. जो आपका ट्रांजिस्टर है PNP टाइप का, उसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो आज इतना ही रखते हैं. I hope you guys have liked it. I hope you guys have liked my approach of teaching, that way I am teaching. So आज इतना ही रखते हैं. I will share this PDF in the group and in the link below. Okay, do not worry about it. I hope you have understood some great concepts today. Although we have studied a little, but these kind of concepts are very important for your learning, definitely.
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सो विल मीट टुडे टुमारो अगेन 9 PM 9 बजे आऊंगा मैं आपसे मिलने वापस से। सो दिस इज व्हाट आई विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट, थोड़ा सा अबाउट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को करने के लिए अनअकैडमी के वेबसाइट पे जा सकते हैं www.com unacademy.com। ठीक है, उसके बाद आप अपना कोड गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट एंड EAC में मैं पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं कल मेरी शुरू हुई थी कंट्रोल सिस्टम। आज फिर भी थोड़ा डाउट क्लियरिंग सेशन था, लेकिन कल से हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन शुरू करने वाला हूं। मैं उस पे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कल से शुरू करने वाला हूं। और जो भी स्टूडेंट्स ऑल्दो अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे है, डेफिनेटली मेरे सेशन को देखने आइए। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर वाचिंग द सेशन। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर वाचिंग द सेशन। आई अश्योर यू, you will be completely satisfied after watching my session, don't worry। Okay, in gate and EAC domain mein I am teaching you, and you need to just click the subscription button here। आफ्टर दिस यू नीड टू सेलेक्ट योर गोल, मतलब कितने टाइम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, the most important thing is my code is KhemLive। if you take by this subscription, by this KhemLive code, you will get 10% of discount। ठीक है, you will get 10% of discount in any subscription। okay, in any subscription you will take, so you will get 10% of discount in any subscription of your this Unacademy Plus। okay, so you can take by multiple methods, you can pay by debit card, credit card, and the most important thing is here there is a EMI option। this is the no cost EMI, this is your no cost EMI। okay, so I hope you are happy with the performance I have, you are happy with the way of my teaching, you are happy with the what I am teaching to you, and आप लोग ने आज कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा डेफिनेटली। ओके, सो आई होप यू आर लाइकिंग इट, आई होप यू आर गोइंग वेल, और आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। टाइम पे आ जाइएगा, बिल्कुल मैं आपका इंतजार करूंगा यहीं पे क्रिएट्रिक्स चैनल पे। आपका प्यारा खेमेंद्र। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।